کہ بھائی اسلام کی خوبصورتی دیکھی جو کہ گھریلو ہنسا کو لیگلائز کر دیا گیا کہ کوئی آدمی اپنی پتنی کو پیٹ سکتے ہیں, بس ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, اور ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو 15 دن کی جیل. Wake up to reality. وہاں پر اس آیت میں لکھا ہے کہ ہڈیاں نہ ٹوٹیں. یہ کہاں لکھا ہڈیاں ہے؟ نہیں ٹوٹیں گی. ایک منٹ ایک منٹ آیت میں نہیں لکھا ہے. یہ آیت میں کہاں لکھا ہے؟ ہڈیاں نہ ٹوٹے, ایکس مسلم کی کتاب میں لکھا ہے. مطلب سسٹر بہت زیادہ ٹوٹ ہوں. ہیں آپ وہ آیت کھولنے چلے, مجھے صحیح جی سے نہیں پتا. آیت کھولیں جی, ہڈیاں دکھائیں جی اس میں سے ذرا ہڈیاں سی. دکھائے بھائی آیت میں ہڈیاں نظر کو سسٹر دکھانا بہت ضروری ہے. جی سسٹر صبا کو شیئر اکنالج بھائی آپ شیئر کر دیے, میں خود فون سے ہوں. یہ تو میں بڑی خود مزے ہی کی آج سسٹر فون نے سے ہوں. بات کر دی ہے کہ آیت میں لکھا عاطف ہوا ہے بھائی, کہ ہڈیاں نہ ٹوٹیں. جی مجھے بھی دکھائیں تاکہ میں پھر آگے سے احتیاط کیا کروں. جی دکھائیں ذرا. عاطف بھائی ذرا وہ آیت شیئر کریں ذرا, میں فون سے ہوں. جی اچھا, ویسے پوائنٹ نوٹ کرنے والا یہ ہے کہ سسٹر نے آدھی والی بات, عقل والی بات سے سٹارٹ کیا, پھر آل اوور دا وہ پلیس پھیل گیا کہ جی وومن جی جی رائٹس ہو گیا, اور جی اب جی اس کے بعد مار ٹپیکل ہو کیس. گیا. اب وہ یہ اصل جو میں آپ اسٹریم پتہ ہے کہ کامن ساتھ جتنے بھی اعتراضات ہیں نا عامر بھائی, وہ سارے کچھ اب آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سامنے سارے آئیں گے. لیکن آپ اگر ان سے ریفرنس مانگے تو وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب ذرا وہ آیت بتا دیجئے, یا عامر بھائی وہ ہڈی والی چیز بتا دیجئے. کوئی بات نہیں, سسٹر نے کوئی ڈبل بات چیک نہیں, کیا نہیں ہے. وہ ہمیں اصل یہ اس کام میں چھوڑنے کی سسٹر بات صبا سے کر نا رہی مجھے ہے. وہ جو لگ رہا آیت ہے, آیت ذرا لے آئیں سامنے. ایک آیت تو سامنے یہ ہے. ہے, آیت سامنے آ جائے. دوسرا ہڈیوں یہ ہے کی سسٹر علینا کا جو, تلاش ہے. ہاں جی سسٹر علینا کا جو کنسرن ہے وہ میں دور کیے دیتا ہوں. اصل میں سسٹر ہوتی ہے 7-8 گھنٹے کی سٹریم, اس میں اسکرپٹ مکس ہو جاتی ہے, نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کس وقت کیا بات کی گئی تھی. وہ پلیز آپ تھوڑا سمجھا کریں اس چیز کو. میں وہی عامر بھائی میرا میں پوچھ رہا تھا. جی جی میں یہ سسٹر عاطف ریان صبا, صاحب ہی دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ذرا ایک بات بس. چلیں ٹھیک ہے, آیت آ گئی, چلیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں. میں بھی آئی نہیں, پہلے آپ نہیں آئے. اچھا ہاں, ہاں میں وہ بول رہا تھا سسٹر صبا, آپ مجھے بتائیں آپ کبھی ان کے چینل پہ گئی ہیں, مطلب ایز این کالر. جی جی گئی ہیں, وہ بتا رہی تھی. جی جی اچھا, تبھی یہی بات ہے, وہاں پہ تھوڑا سا ان کا وہ ایگو ہرٹ ہو گیا ہے ہاں شاید. جی بھائی, اس کو تھوڑا سا زوم کریں اس کو. زوم کریں وہ. ہاں اس میں ہڈیاں جی دیکھنی ہے. ہڈیاں دکھائیں جی کوئی. اگر ران یا چامپ میری فیوریٹ ہے. بھائی جی 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 میں حضرت ونگز بھی بڑے شوق سے کھاتا ہوں. وہ تو میرے بھی فیوریٹ ہے عامر بھائی, وہ نہیں, وہ جی مجھے ملیں گے, میں اس پہ جی لڑائی جی کر چلیں دوں گا. چلے ٹھیک ہے, وہ آپ آپ کے. لوگ مجھے نان مسلم سمجھ رہے ہیں. نہیں نہیں, نہیں آپ کو نہیں او کہہ رہے ہو ہیں کمال آپس ہو میں. گئی. آپ کیوں برا مان رہی ہیں, ہم آپس میں مذاق کر رہے ہیں. ہم اپنے نیکسٹ کھانے کی تیاری کر رہے ہیں سسٹر, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کے نہیں اوپر نہیں, بات میں کیوں ہو رہی ہے؟ سسٹر کے ساتھ ہوں, میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں. آپ جی بے فکر رہیں, ہم دونوں بہنیں کافی رہیں گے. جی 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 صحیح جی بات ہے. نہیں, جی جی مجھے آپ ہاں سے یہی مسئلہ ہے کہ سسٹر آپ سسٹر ابھی ہڈیاں, سسٹر ابھی ہڈیاں نہیں, نان ادھر ادھر مسلم نہیں جائیں گے, ابھی سمجھتے ہیں. ہڈیاں نکلیں گی. مجھے سمجھ آ گئی ہے سسٹر, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ ادھر ایموشنل نہیں چلتے, ادھر ریشنلٹی چلتی ہے, بے فکر ہو جائیں. جی اب اس میں آپ بتائیں کہ اتنا مارو کہ ہڈیاں نہ ٹوٹیں, یہ آیت میں کہاں لکھا ہے. جی تھوڑا آپ زوم دیکھ لیں. کریں, زوم زوم کریں. عاطف بھائی زوم کرتے ہیں. جی اچھا, جب تک وہ ہڈیاں نکلتی ہیں, وہ ایک بڑا زبردست سا کامیڈی کا شعر ہے کہ اے دوست فراموش تیرا ہوش کہاں ہے, ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی, تیرا گوشت کہاں تیرے ہے. وہ جسم میں ہڈی صرف ہڈیاں ہیں, پر ہاں گوشت کہاں ہے. ہاں ہاں, کیا اچھا بات. اچھا جی, یہ آیت نمبر کیا تھا اس کا؟ یہی ہے جی 430. ہاں زبردست, یہ اتنا آگے زوم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی سسٹر. جی بھائی, اب اس میں اس کو تھوڑا سا نیچے کریں, چونکہ عربی میں ہے, وہ کہیں گے کہ میں عربی نہیں جانتی, تھوڑا اس کو انگلش کا ٹرانسلیشن لے کر آئیں. یہ آگے بس سسٹر صبا, ہاں سسٹر صبا, تھوڑا یہ وہی تھوڑا ہے. سا اوپر قرآن.com جو وہ زیادہ تر ایکس مسلم دکھاتے ہیں نا, یہ وہی ہے. کریں. بس آ گیا. چلیں اب اس میں جو ہے بتائیے ہڈی کا لفظ. اب اس میں بھی جو انگلش ہے وہ بہت باریک ہے, اور میری آئی سائٹ ویک ہے, تو آپ پڑھ دیں, میں ٹرانسلیٹ کر اوہو, لیتی ہوں. چلے. Men are the protectors and maintainers of women because Allah has made one of them excel over the other, and because they spend out of their possession to support them. Thus righteous women are obedient and guard the rights of men in their absence under Allah's protection. As for women of whom you fear, نیچے کریں, rebellion, admonish them and remain apart from them in beds and beat them. Then if they obey you, do not seek ways to harm them. Allah is exalted great. جی کہیں بول نہیں دیکھی, ہڈی کھا گیا میں شاید چبا کے. بتائیے بون کہاں لیس ہے. ہے میرے, بون لیس کڑھائی ہے. مطلب تو یہاں پہ مجھے تھپڑ بھی نہیں دکھا ہے. تو ابھی تو بات شروع ہوئی. وہ تو آپ خود کو مروا رہی ہیں نا سسٹر, وہی تو ہم کہہ رہے ہیں.
तो आप बताएंगे फिर ये जो लोग नहीं अगर हम नहीं अपनी बताते बीवी ना सिस्टर हजरत, जरा मुझे यहाँ से मौका दीजिएगा क्योंकि मैं सिस्टर हम नहीं बताते होते, हम एतराज सुनते होते हैं। आपने जो बोन्स का यहाँ पर कहा वो यहाँ नहीं मिला सिस्टर, ये किस एक्स मुस्लिम ने आपको बताया है, जरा ये थोड़ा बताइएगा। हैं जी सर आमिर भाई एक ही बोनलेस एक्स मुस्लिम है, हाँ बिल्कुल एक ही है, एक ही है वही बोनलेस। हाँ स्पाइनलेस तो सारे हैं हजरत, लेकिन इससे पहले ब्रेनलेस भी सारे ही हैं, ब्रेनलेस भी सारे ही हैं। जी जी आमिर भाई, इससे पहले कि गुफ्तगू थोड़ी सी डिटेल हो जाए, मैं सिर्फ आपको असिस्ट करते हुए चाहूंगा कि आप इनसे पूछें कि जो ये कह रही हैं कि इसमें थप्पड़ भी नहीं लिखा हुआ, तो थप्पड़ का दावा हमें से किसने किया था कि लिखा है कि थप्पड़ मार लो वहां पे, आयत में लिखा हुआ। आपने नहीं, वैसे मैंने आपको आपने कहा था मैंने कि आप आपसे एक थप्पड़ सुनिए उसके जी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। मैंने ये कहा था कि इस लफ्ज की भी बहुत ज्यादा तशरीह की गई है, और एग्जाम्पल में मैंने कहा कि अगर एक औरत मुसलसल ये हरकत किए जा रही है, जिसकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी आगे, और उसके बाद अगर एक थप्पड़, एक स्लैप ऑन अ फेस से अगर वो खानदान बच जाता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आयत के अंदर ये लिखा हुआ है कि थप्पड़ मारें, आप मुक्का कर लें, एक लात कर लें। जबरदस्त हो गया। अच्छा मैं सॉरी, मेरा बहुत देर का सवाल फंसा हुआ है, मैं नहीं निकल पा रहा किसी तरीके से। अच्छा सिस्टर सबा, ये है कि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये हुजूर की कैसर भाई की दोस्तों की मौजूदगी में मैं आपको सिंसियर समझ रहा था, मगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा हुस्न ज़न खत्म हो गया हुआ है। एक तो ये चीज है, दूसरी चीज ये है कि ना जो आपने कहा वो उस आयत में से निकला है, खुद फिर आप कह रही हैं थप्पड़ भी नहीं निकल रहा, समझ से बाहर है, फिर क्लेम क्या है? सिस्टर के जो बेसिक जो प्रेमिसेस है वो ये है। कैसर भाई भी कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं कैसर भाई पहले आप कर लें, क्योंकि आप भी काफी देर से खामोश हैं। यानी अच्छी बात है, मैं आपके अंडर कार्ड में आ जाऊंगा इस तरह से, मेन इवेंट जी। आपका हो जाएगा। सिस्टर सबा अस्सलाम वालेकुम, मैं कैसर अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आपने कहा कि मर्द को हक है औरत को मारने का, आपको पता है ये हक क्यों है? मुझे सिर्फ आयत पता है। ठीक है, आयत 434 है, और उस वही आयत है। में मुफ्ती साहब आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस सूरत में मारने का हक है? क्योंकि मैंने जिन उलमा से पूछा था उन्होंने मुझे सिस्टर कैसर भाई ने कुछ पूछा है, उनको देख लेना। मैं आपकी तरफ बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको कैसर भाई को जवाब दे दें जो पूछ रहे हैं वो। जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि 434 है, सूरह निसा की आयत नंबर 34, यही घूम फिर के सामने आती है बार बार। हियर इज अ सिचुएशन कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जो औरतें हैं, ये आप, ऐसा नहीं है कि आप उठा के जो मर्जी करे, जब उठा के आपने मारना शुरू कर दिया। तो सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ, नशूज़हुन्ना, ये एक बड़ी पर्टिकुलर फ्रेज है जो हदीस में भी इस्तेमाल हुई है। बात हम करते हैं, और मेरी पूरी बात सुनिएगा, इसके एंड में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि वो औरतें हैं जो कि गुमराही करती हैं, यानी कि आपके हस्बैंड की जो इज्जत है उसकी हिफाजत नहीं करते। ये पीछे बात लिखा हुआ है कि वो औरतें जो हैं बेसिकली अच्छी होती हैं, जो हिफाजत करने वाली होती हैं, जब हस्बैंड पास नहीं होता वहां पे, तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत की, अपने निकाह की हिफाजत करती हैं। और उसके बाद फिर है कि वो औरतें जो सरकशी करती हैं, यानी कि वो खयानत करती हैं अपने हस्बैंड की अमानत में, उसका बेड किसी और मर्द के साथ शेयर करती हैं या कहीं और उन्होंने ताल्लुक बनाए हुए हैं। कुरान ये कहता है कि अगर कोई ऐसा करती है ना, उससे बात करो, समझाओ उसे। फिर भी बाज नहीं आती, बिस्तर जुदा कर लो। फिर भी बाज नहीं आती, तो उसके बाद फिर आगे मारो। और फिर अगर वो ठीक हो जाती है तो उसको कभी तुम बहाना भी ना ढूंढो उसको ताना देने का। अब यहाँ पे जो स्टेजेस हैं उसमें ये है कि जब बात आती है उसको समझाने की, तो उस औरत के पास खुला का हक है, वो खुला नहीं लेती। वो क्या करती है, वो अपने हस्बैंड की इज्जत नाराम किए रखती है, एक बॉयफ्रेंड बनाए रखती है, और ये एक जिद करती है कि मैं तुम्हारे घर में रह के ऐसा करूंगी। फिर वो उसे बिस्तर जुदा करता है, और वो फिर भी कहती है मैं खुला नहीं ले रही, हक मेरे पास है, मैं ले नहीं रही, मैं यहीं पे रह रही हूँ, तुम्हारे घर में रह के सारा कुछ करूंगी। मुझे उसके बाद आगे, और वो जो मारने का, उसकी भी कई तरह की उसकी तशरीहात हैं। बहुत से लोग उसको फिजिकल मारना समझते हैं, बहुत से लोग फिजिकल नहीं मारना समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि स्टेज पे तो प्रॉपर फेंटी भी जस्टिफाई हो जाती है कि ऐसी औरत जो ऐसी हरकत कर रही है नाउ। और उसके बाद भी है कि अगर वो फिर अपना रास्ता ठीक कर लेती है तो आपने उसको ताना भी नहीं देना है, बहाना नहीं ढूंढना है आपने। अब आप ये आयत ना
किसी नॉन मुस्लिम कपल के पास ले जाएं, मुल्हिदीन के पास ले जाएं कि किसी मुल्हिद की बीवी ऐसी हरकत कर रही है, और उसको बताएं कि यूके में ऑन एवरेज, बरतानिया में हर हफ्ते ऑन एवरेज 2 औरतों का कत्ल होता है उनके साबका शोहरों या उनके साबका बॉयफ्रेंड के हाथों के। जब हमारा रिलेशनशिप था तो तुमने बेवफाई की थी, मुझे छोड़ा था और किसी और मर्द के साथ भाग गई थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सिर्फ यूके के स्टैट्स हैं, बहुत से मुल्कों के इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि तुम ऐसी हरकत कर रही हो तो तुम्हारा हस्बैंड आके तुमसे बात करे, तो बेड जुदा करे, ये प्रोसेस तुम्हें अच्छा लगेगा, या खींच दे, जो ही देखे ना तुम्हें ऐसा करते हुए वहीं पे फड़का दे? ये 434 तुम्हें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? व्हाट डू यू थिंक? और ये इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल ना लीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही बात कहा है कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं औरतों को मारो सिवाय यही सर्कमस्टांसेस जो 434 के लिखे हुए हैं। तो आप जरा मुझे बताइए, अपने भाई को सामने रख के, अल्लाह ताला आपके भाई के घर की इज्जत करे, वो हमारा भाई है, इनके बेचारे पर्सनल रिलेशंस को रिमूव करते हैं किसी भी आदमी को कि जिसकी बीवी ऐसे कर रही है, और कुरान कह रहा है कि अपनी बीवी को इतनी इज्जत दो कि इस हरकत के बावजूद उससे बात करो, फिर बिस्तर जुदा करो, फिर भी वो कहती है कि मैं जाऊंगी भी नहीं और तुम्हारे घर में ही रह के किसी और मर्द के साथ मुंह काला करूंगी। व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स? इस्लाम में तो ज़िना की सजा उसको मार देना है। फिर मैं इस्लाम ने उस यहाँ पे तरफ क्यों दिया? आते हैं उस तरफ। मेरे इस सवाल का सजा जवाब तो दीजिए। नहीं है। नहीं, मेरे फ्लर्ट सवाल का फ्लर्ट जवाब की दीजिए। बात फ्लर्ट की हो रही है, अभी उसने जिक्र नहीं किया, उसके ताल्लुकात हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है वो, उसकी बात हो रही है। अभी ये दूसरे जो हैं ये तो बोल रहे थे कि इज्जत खराब की है। एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं ना, उसने याराना लगाया, कुछ भी किया है, यानी कि इज्जत की हिफाजत नहीं की ना, जो कुरान ने कहा है कि मर्द की गैर मौजूदगी में उसने हिफाजत नहीं की। वट एवर दिस सिचुएशन, आप मुझे बताएं उसका क्या और अगर जिना भी कर लिया उसने, तो ये तो मर्द का हक है ना कि वो कोर्ट जाए या नहीं जाए। वो नहीं जाना चाह रहा, वो मामले को अपने घर में ही सुलझाना चाह रहा है, तो कैसे सुलझाए? वो बीवी सुन नहीं रही है, अब बताएं क्या करें? कोर्ट आप ये बताइए, कोर्ट के जरिए ये कोड़े लगाना आपको मंजूर है, या शौहर अगर उसके एक आध हाथ छोड़ने से मामला सही हो जाता हो वो मंजूर है? मुझे ये मंजूर है जो क्या? अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन हाँ फिर जब शौहर ये हरकत कर रहा है तो ठीक, अब उसका जवाब जी कसर भाई, मैं हालांकि उसका मैं जवाब दे चुका हूं, इसमें आप ऐड करना चाहेंगे कसर भाई? अगर जी शौहर ये ये कर रहा है। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी, क्योंकि औरत ऐसा करती है तो फिर आप ये नहीं हम कह रहे कि ये मर्द को हक है वो मारे, बल्कि बता दिया है कि वो अदर सर्कमस्टांसेस, ये बात क्लियर होगी हमारी? जी राइट। अब अगर मर्द ऐसी हरकत करता है तो औरत को ये हक क्यों नहीं दिया गया? बड़ी सिंपल वजह है कि हमें जो साइकोलॉजिकल स्टैट्स हैं और जो साइकोलॉजी के माहिरीन हैं वो बताते हैं कि अगर इस तरह की दुनिया में जहां पे भी ऐसा होता है कि किसी मर्द ने अगर गलत हरकत की है और उसकी औरत ने उस पर हाथ उठाया है, तो उसमें अल्टीमेट नुकसान औरत का हुआ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो साइकोलॉजिकल सिमुलेशंस हैं वो ये बताती हैं कि इस तरह के इख्तियारात अगर औरत को दे दें तो वो घर बच ही नहीं सकता, जबकि इस्लाम इस आयत में मर्द को इसलिए हुक्म दे रहा है कि घर बच जाए। इफ द कॉस्ट ऑफ दैट इज अ स्लैप ऑन द फेस, और उसके बाद फैमिली बच जाती है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब औरत करेगी तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट उसका आउटकम होगा कि वो घर टूट जाएगा, इसलिए वो नहीं कर सकती। जी मुझे इजाजत है जी। जी जी सर। जी आमिर भाई एक सेकंड, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक जो बात है सिस्टर सभा, वो क्लियर हो गई या नहीं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चले तो फिर जरा बात मुनासिब होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक ये बात बात क्लियर हो गई कि इजाजत क्यों नहीं है, लेकिन अब